Good morning, students. Today in the history class we'll be discussing about two cities of Mesopotamia. Okay. In fact, the city of Uruk we were already discussing, and we saw that how Uruk had developed into a large city. This city is one of the earliest temple towns. Okay, so initially it started building around the inhabitants started staying around temple, and that's why it is called temple town. Okay, that is how this city began, and temples were the center of all activities. Temples ही मेन होते थे, उन्हीं के आसपास लोग रहते थे. एक्टिविटीज़ का जो सेंटर होता था वो टेम्पल्स ही होते थे. So people started building these temples and they started staying near those temples. All activities that were happening, obviously like grinding and processing and making of obviously spinning and all. So all those activities were done within the temple complex. It used to be a big complex. Initially the temples were small, that is what we saw, and then they were large temples. Okay, and a lot of construction activity used to take place, and if we can have an idea how big these temples were, then you can see that 1,500, almost 1,500 men took 5 years to build a temple, and that is when they worked every day for 10 hours. अब देख रहे हैं कि 1,500 लोगों को हर दिन 10 घंटे जब उन्होंने काम किया तो उन्हें 5 साल लगे टेम्पल बनाने में. सो यू कैन रियली इमेजिन हाउ बिग दीज टेम्पल्स वर. सो दे वर द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज एंड दिस सिटी ऑफ Uruk. In fact, let me first explain you this. You already understand this is the river Euphrates and that is river Tigris. This is the area of Mesopotamia. Okay, this south, which was agriculturally advanced, the channels of Euphrates, obviously they brought a lot of water, and this was a fertile plain. This was the main area where cities developed, and there are a lot of cities, but these are the 3 important cities you need to remember, and this is their location. On the top here was Babylon. We're talking about south area. Okay, so south Mesopotamia. This is Babylon, and below Babylon is Uruk, the city that we are discussing. And next we will be discussing about the city of Uruk. So these cities are in the south. In the north, you have steppes, those grasslands, where herding is a more common activity. यहाँ एग्रीकल्चरली हर्डिंग ज़्यादा होती है. ये नॉर्थ का इलाका है, यहाँ पे ग्रासलैंड्स है, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सिटी है मारी. ओके, सो दीज 4 नेम्स यू मस्ट रिमेंबर. यहाँ स्टेपीज है, ये नॉर्थ में है, और यहाँ पे एक सिटी है मारी. साउथ में यू सी बेबीलोन, उरुक एंड उर. In fact, we are not discussing Babylon in this chapter. We are basically discussing about Ur and Uruk. Okay, because we know a lot about them. बहुत extensive excavation हुआ है उनका, that we will see. तो इसे हम डिस्कस कर रहे हैं. In the present context, जो सबसे important city है इस एरिया की, क्योंकि इराक में है, इराक की कैपिटल है, वो बगदाद है, and बगदाद is not on river Tigris, sorry, not on river Euphrates, लेकिन ये टिग्रिस पर है, और ये सिटी बाद में बनी, और ये इराक की प्रेजेंट डे कैपिटल है. So we are discussing this city, and then we will be discussing. These are the 2 cities which have been discussed in detail in your chapter. Okay, तो अभी हम उरुक की बात कर रहे हैं. उरुक एक टेम्पल टाउन से ये फिर बहुत बड़ी सिटी हो गई. यहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ होने लगी. ओके, hundreds of ration lists and significant. Okay, before that let me also tell you one thing, कि इसकी एक डिफेंसिव वॉल हुआ करती थी, और बहुत पहले से थी इसकी डिफेंसिव वॉल. We saw the size of the city. Here you can have a fair idea that Uruk was one of the earliest towns. Around 3000 BCE, we are seeing that the city size was 250 hectares. Okay, and then after 200 years, 2800 BCE, we see that this city expanded to 400 hectares.
There were also a lot of technical advances which took place here, and around 3000 BCE, we see the use of bronze in a big way. Bronze tools came into use for various crafts. It was the copper age which came first, and then it led to bronze. So bronze tools यहाँ पे हमको बहुत देखने को मिलते हैं, उनका बहुत यूज हो रहा था. And there were other advancements also. Architects, they learned to build columns. Columns, when a ceiling has to be supported, columns के ऊपर ceiling का support होता है. And अगर पुराने घर देखें तो initially पहले जो घर बनते थे उसका जो upper part था, that was made up of wood, and wood से छत बनाई जाती थी. लेकिन क्योंकि यहाँ पे wood नहीं है, and you understand why wood is not there, बिकॉज यहाँ पर जो भी ट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर डेट पाम है, और डेट पाम की वुड ऐसी नहीं होती है कि उससे घर कंस्ट्रक्ट किया जा सके. सो क्योंकि यहाँ पे वुड अवेलेबल नहीं थी, एंड वट एवर वुड दे रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बुलक कार्ट्स और कंस्ट्रक्टिंग बोट्स, वो वुड भी इन्हें बाहर से बनानी पड़ती थी. बट उसके लिए तो फिर भी चलो देयर मस्ट हैव बीन अ वे कि इतनी तो बना सकते हैं. बट फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस लॉट ऑफ वुड इज रिक्वायर्ड, और जब तक लोकली एरिया में वुड अवेलेबल नहीं हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप वुड से कंस्ट्रक्शन करें. सो वी सी इन नॉर्दर्न इंडिया, एक प्लेन एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा वुड नहीं है, द कंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस विद कंक्रीट, वेयर एज इन हिली एरियाज वेयर एक्चुअली वुड इज अवेलेबल, द कंस्ट्रक्शन स्टिल हैपन्स विद वुड. क्योंकि यहाँ पर वुड अवेलेबल नहीं थी पूर्व में, या इनफैक्ट द एंटायर एरिया वुड वॉज नॉट अवेलेबल, या जो वुड अवेलेबल थी दैट वाज नॉट सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, वो घर के कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं हो सकती थी. इसीलिए घर की जो छत है उसको बनाने का तरीका ढूंढना था आर्किटेक्ट्स को, एंड आर्किटेक्ट्स ने वो तरीका ढूंढ लिया जिस तरीके से आज भी हम घर बनाते हैं, और सीलिंग को सपोर्ट करने के लिए कॉलम्स. सो आर्किटेक्ट्स दे लर्न टू कंस्ट्रक्ट ब्रिक कॉलम्स, और ब्रिक्स के कॉलम्स उन्होंने बनाने सीख लिए, एंड इस तरह से वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वो कर सकते थे. ओके, सो दोस पिलर्स एंड दोस थिंग्स दे लर्न. ओके, देयर बीइंग नो सुटेबल वुड टू बियर द वेट ऑफ द रूफ ऑफ लार्ज हॉल्स. तो बड़े बड़े हॉल्स का जो वेट को बियर करने के लिए कॉलम्स उन्होंने, और ये कॉलम्स पहले वुड के हुआ करते थे, ज़्यादा जगह हम देखते हैं वैसे उस पीरियड में, बट यहाँ पर हम देखते हैं वो जो कॉलम्स जो उन्होंने बनाए वो कॉलम्स बने ब्रिक के. ओके, hundreds of people were put to work at making and baking clay cones that could be pushed into temple walls painted at different colors. तो ये उसका बताया गया कि कैसे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते थे टेम्पल्स को बनाने में, एंड स्कल्पचर there was superb achievements, नॉट एन इजीली अवेलेबल क्ले. तो क्ले की मूर्तियाँ तो बनती थी, क्ले तो इजीली अवेलेबल था वहाँ पर, लेकिन अब हम और एडवांसमेंट देख रहे हैं स्कल्पचर में, एंड दैट ऑन इम्पोर्टेड स्टोन. इससे पहले जो हमने एक स्कल्पचर डिस्कस की थी, दी वारका, ओके, दी वारका हेड, दैट इज ऑल्सो मेड ऑफ स्टोन. ओके, तो यहाँ पे अब अच्छे स्कल्पचर्स बनने लगे, अच्छे टूल्स आ गए ब्रॉन्ज के, घर अच्छे बनने लगे, बड़े बड़े हॉल्स अब बन सकते थे, एंड बाकी जो एडवांसमेंट था वो ये था कि टेम्पल्स बहुत बड़े बनने लगे. एंड देन देयर वाज अ टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क दैट वी कैन से इज एप्रोप्रिएट विद अर्बन इकोनॉमी. और फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क और इम्पोर्टेंट अचीवमेंट, और वो था पॉटर्स व्हील. दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट, क्योंकि इससे पहले पॉटर्स जब बनाते थे पॉट्स तो उसमें टाइम लगता है, बट विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील के ऊपर जब क्ले रखते हैं और उसको रोटेट करते हैं, देन दे कैन वेरी क्विकली मेक पॉट्स एंड अदर. सो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट. अर्बन इकोनॉमी हमेशा ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और उनको बहुत तेज़ी से बनाना होता है.
So it was the potter's wheel, and this was a technological landmark. In the long run, the wheel enables a potter's workshop to mass produce dozens of similar pots at a time. So we are seeing in the city of Uruk in Mesopotamia, people invented potter's wheel, and now they could make these pots very quickly for, and they were easily available for the large population that was there in this city. So this is a huge city, a lot of things are required. This city also now had ruling elite. There were some who were very rich, and how we can say that from the burial grounds, we see that a lot of people were buried with a lot of riches and some of the ornaments and all पाए गए हैं उनके burials में. So nothing makes the fact as clear as the enormous riches, jewelry, gold vessels, wooden musical instruments inlaid with white shell and lapis lazuli, okay, ceremonial daggers of gold, etc. हम देख रहे हैं कि इनके burial में ये सारी चीजें मिली हैं, which means that there was a section of society. Society में कुछ ऐसे लोग थे जो कि बहुत rich थे, they were ultra rich and they had a lot of wealth. And ये उनके burial जो grounds हैं जहाँ पे उन्हें दफनाया जाता था, वहाँ से पता चलता है क्योंकि उनके साथ ये चीज़ें भी दफनाई जाती थी. A lot of jewelry, gold vessels. We are seeing a lot of wooden musical instruments जिसमें काफ़ी काम किया हुआ है, and daggers made up of gold. Buried with some kings and queens at Ur. अब basically we have learned about the city of Uruk, and now we'll be moving to Ur. Now we know a lot about the city of Ur. Why? Because 1930s के बाद there has been extensive excavation. यहाँ पर काफ़ी खुदाई की गई है और यहाँ पे जो टाउन्स हैं उसका लेआउट एंड ऑल वी नो प्रॉपरली. जैसे कि मोहनजोदारो एंड हड़प्पा के बारे में जानते हैं, we know every detail about Mohenjo-daro because it has been excavated properly. And similarly we see the city of Ur where a lot of excavation has taken place. और यहीं के burial की बात हो रही है. We are basically now moving to this city and we will be discussing the city of Ur, okay, which is south of Uruk. उसके south में है ये. And generally we are seeing that Mesopotamian society, इस civilization में हम देखते हैं कि families कैसी थी. जॉइंट फैमिलीज नहीं थी. ये ज़्यादातर जो फैमिलीज थी वो न्यूक्लियर फैमिलीज थी. ये देखा जाता है that they used to stay with their parents also, okay, but generally we are seeing that they were nuclear families. And what do we mean by nuclear families? जैसे कि अभी हमें शहर में देखने को मिलता है that a person is staying with his wife and children, that is it, उसे हम nuclear family कहेंगे. लेकिन उसमें जब पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स और वो सब जब उसमें शामिल हो जाते हैं तो फिर वो जॉइंट फैमिली कहलाती है. ओके, एंड सिटीज़ में ज़्यादातर हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं. तो यहाँ पर भी न्यूक्लियर फैमिलीज अब होने लगी थी. ए न्यूक्लियर फैमिली कंप्राइजेस अ मैन, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. लेकिन ये पैट्रियार्किकल सोसाइटी है. मेसोपोटामियन सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली वॉज द नॉर्म मीन्स कि नॉर्मली न्यूक्लियर फैमिलीज होती थी. ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई भी जॉइंट फैमिलीज नहीं थी. सम ऑफ द फैमिलीज मस्ट हैव बीन जॉइंट, बट मोस्ट ऑफ द फैमिलीज वर न्यूक्लियर फैमिलीज. एंड वी नो फ्रॉम द लीगल टेक्स्ट disputes and inheritance matters that the Mesopotamian society, the nuclear family was the norm. Although a married son and his family often resided with his parents. Obviously ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स नहीं रहते थे. कई केसेस में हम देखते हैं कि पेरेंट्स भी साथ रहते थे. The father was the head of the family. और ऐसे फैमिलीज को हम पैट्रियार्किकल सोसाइटी कहते हैं जहाँ पर फीमेल मेंबर इज द हेड ऑफ द फैमिली. उन सोसाइटीज़ को हम मैट्रियार्किकल सोसाइटी कहेंगे. ये बहुत कॉमन वर्ड है. इट्स वेरी मच यूज्ड इन हिस्ट्री. यू कीप कमिंग अक्रॉस दिस वर्ड पैट्रियार्किकल एंड मैट्रियार्किकल, या फिर से पैट्रिलिनी या मैट्रिलिनी के नाम से जाना जाता है. जहाँ पे मेल मेंबर हेड होता है, वो सारे डिसीजंस लेता है. ऐसी सोसाइटी मैट्रिलिनी कहलाती है या मैट्रियार्किकल सोसाइटी कहलाती है. सॉरी, पैट्रियार्किकल, where male is the head, and where female is the head,
देन मैट्रियार्की। ओके, सो यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन है कि प्रोसीजर ऑफ मैरिज क्या होता था, कैसे मैरिज होती थी। आई डोंट थिंक सो कि इसमें तो ज़्यादा कुछ नया है। डिक्लेरेशन वॉज मेड अबाउट द विलिंगनेस टू मैरी, द ब्राइड्स पेरेंट्स गिवन देयर कंसेंट टू द मैरिज। तो उसके जो ब्राइड के पेरेंट्स हैं वो इजाज़त देते थे शादी की। एंड देन अ गिफ्ट वॉज गिवन बाय द ग्रूम्स पीपल टू द ब्राइड्स। तो जो ग्रूम है लड़की की तरफ से गिफ्ट आती थी। When the wedding took place, जो वेडिंग को डिस्क्राइब किया गया है कि गिफ्ट्स वर एक्सचेंज बाय बोथ पार्टीज। सो आपस में एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करते थे। एंड दे एट टुगेदर एंड मेड ऑफरिंग इन अ टेम्पल। तो टेम्पल का भी रोल है यहाँ पर, जैसे हम इंडियन सोसाइटी में देखते हैं। एंड when her mother-in-law came to fetch her, उसकी mother-in-law उसे लेने आती थी लड़की को, the bride was given her share of the inheritance by her father। तो उसके शेयर की जो वेल्थ होती थी, ओके, इसे हम डाउरी नहीं कहेंगे, जो आज के वर्ड में, आज के समाज में जो यूज होता है, दिस नॉट डाउरी। इनफैक्ट फादर विलिंगली, जो उसे लगता था कि अपनी बेटी को देना चाहिए वो देता था। द फादर्स हाउस हर्ट्स फील्ड्स, तो जो लड़की का शेयर है वो उसको दे दिया जाता था। लेकिन जो मेन चीज़ें हुआ करती थी कि जो फादर का जो घर है, जो हर्ट्स है, जो फील्ड्स वगैरह है, दे बिलोंग टू देयर सन्स। तो वो इनहेरिट करते थे सन्स। ऐसा नहीं है कि लड़की को कुछ नहीं दिया जाता था, डॉटर ऑल्सो यूज टू गेट, एंड डॉटर का शेयर उसके मैरिज पर उसको दे दिया जाता था। लेकिन जो मेन इनहेरिटेंस है, जो मेन चीज़ें हैं, दे वर ऑल इनहेरिटेड बाय दी सन्स। तो ये एक पैट्रियार्किकल सोसाइटी थी। एक सिंपल प्रोसेस बताया गया है हाउ द मैरिज यूज्ड टू टेक प्लेस। दे यूज्ड टू एक्सचेंज गिफ्ट्स, दे यूज्ड टू ईट टुगेदर, एंड द फीमेल, द ब्राइड वाज गिवन हर शेयर ऑफ इनहेरिटेंस, एंड देन शी वेड। ओके, नाउ वील बी लुकिंग इनटू द सिटी ऑफ उर। ये उसका आर्किटेक्चर, हाउ द सिटी वाज कंस्ट्रक्टेड, इसके लेन्स कैसे थे, इसका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, हाउ हाउस अ पर्टिकुलर एक ऑर्डिनरी घर कैसा कंस्ट्रक्ट होता था। सो उर वॉज अ टाउन whose ordinary houses were systematically excavated। इसका excavation किया गया 1930s में, and what was found was narrow winding streets। So this is just the opposite of Mohenjo-daro। Mohenjo-daro में we saw that the streets were straight, they met at right angles। क्लास 6 में पढ़ा है, you will again be learning about Indus Valley civilization in class 12, that is next year। And here we are seeing the opposite of Indus Valley civilization। यहाँ की जो streets हैं वो बहुत narrow हैं, बहुत पतली हैं, they are winding, means वो straight नहीं है, वो घूमती हुई जा रही है। Okay, so narrow winding streets indicate यहाँ पे wheeled cart could not have reached many of the houses। अब कई एरिया हैं शहर के और इन लेन्स में व्हील्ड कार्स, वो गाड़ी जिसमें के वो व्हील लगे होते हैं, इसका पहुंचना नामुमकिन था। बिकॉज वो जो गलियाँ थी, जो लेन्स थी, वो बहुत पतली थी, ऊपर से दे वर टर्निंग, सो इट वाज नॉट पॉसिबल। तो फिर सामान कैसे जाया करता होगा घर पर, स्पेशली जो ग्रेन्स हैं जो आते होंगे, एंड विच इंडिकेट्स दैट फायरवुड एंड ग्रेन, इन्हीं की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है रेगुलरली। सो फायरवुड एंड ग्रेन वुड हैव अराइव्ड ऑन डोंकी बैक। तो वो डोंकीज की मदद से घर घर में सामान जाता होगा, बिकॉज कोई भी व्हील्ड कार्ट का पहुंचना इतनी पतली लेन्स में पॉसिबल नहीं था। सो वी आर सीइंग इट्स नॉट अ वेरी प्लान्ड सिटी। यहाँ की जो रास्ते हैं वो काफ़ी टेढ़े मेढ़े हैं, पतले हैं। ओके, एंड नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स एंड इर्रेगुलर शेप्स ऑफ हाउसेस। जो घर का शेप है वो इर्रेगुलर है। ओके, वो एक रेगुलर नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉपर स्क्वायर और अ रेक्टेंगल। घर का जो शेप है वो इर्रेगुलर शेप्स ऑफ हाउस प्लॉट्स ऑल्सो इंडिकेट एन एब्सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग। तो ये टाउन है तो बड़े टाउन्स हैं, लेकिन इनमें टाउन प्लानिंग मिसिंग है, जो कि हम इंडस वैली में देखते हैं। ओके, there were no street drains of the kind we find in contemporary Mohenjo-daro। तो मोहनजोदारो में जैसे ट्रेन्स थे, घरों का जो पानी ट्रेन्स के जरिए बाहर जाता था, यहाँ पे ट्रेन्स नहीं थे।
घरों का जो पानी था दैट वाज लेट आउट इन दी स्ट्रीट, और वहीं स्ट्रीट पर ही उसको छोड़ दिया जाता था. Drains and clay pipes were instead found in the inner courtyards of the poor houses. And घर के कोर्टयार्ड में अंदर वहाँ पर पाइप्स देखने को मिलते हैं, लेकिन लेन्स में नहीं, स्ट्रीट के लेन्स में नहीं. And it is thought that house roofs sloped to inwards and rainwater was channelized by the drain pipes into sumps. और ये माना जाता है कि इनकी जो छतें थी वो देवर इनवर्ड इंक्लाइन, मतलब घर के अंदर की तरफ उनकी ढलान थी, घर के बाहर की तरफ नहीं. बारिश का जो पानी आता था वो ऑब्वियसली घर के अंदर कोर्टयार्ड में आता होगा, और कोर्टयार्ड से इन ड्रेन पाइप्स के जरिए वो पानी को सम्प. ओके, सम्प इज यहाँ पे डिफाइन किया गया है. A sump is a covered basin in the ground into which water and sewage flow. तो स्ट्रीट लेन में सीवेज एंड पानी को डालने के बजाय वो अंडर द ग्राउंड वहाँ पर उसको ऑब्वियसली चैनल में भेज दिया जाता था. तो सम्प्स वर यूज्ड रादर देन द प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. सो यहाँ पे ड्रेन्स एंड क्ले पाइप्स स्ट्रीट्स में नहीं बल्कि घर के अंदर कोर्टयार्ड में पाए गए हैं, और इसीलिए उनका मानना है कि जो रूफ हुआ करती थी वो शायद घर के अंदर की तरफ उसकी ढलान रहती होगी, जिससे कि बारिश का पानी घर के बाहर नहीं, घर के अंदर ही गिरे और फिर इन पाइप्स के जरिए वो ज़मीन के नीचे चला जाए. ओके, नाउ व्हाई वी आर नॉट श्योर, इस छत के बारे में तो नहीं पता है कि वो तो पेरिशेबल मटेरियल की बनी होगी और वो नहीं है, इसलिए क्लियरली नहीं कह सकते कि वो किस तरह की हुआ करती थी. बट यहाँ पे जिस तरह का ड्रेनेज सिस्टम है उससे आइडिया लगाया जा रहा है. ओके, दिस वुड हैव बीन अ वे ऑफ प्रिवेंटिंग द अनपेव्ड स्ट्रीट्स फ्रॉम बिकमिंग एक्सेसिवली स्लशी आफ्टर अ डाउनपोर. अब ये पक्की गलियाँ नहीं हैं, अगर वहाँ पर सभी लोग पानी छोड़ देंगे तो निकलना आना जाना मुश्किल हो जाएगा. इसीलिए घरों का जो पानी होता था, जो वेस्ट वाटर होता था, उसको घर के अंदर ही ज़मीन में उसको चैनल कर दिया जाता था. Yet people seem to have swept all their household refuse, और जो बाकी गंदगी होती थी घर की उसे स्ट्रीट पर फेंक दिया जाता था. And how we can say this? Because this household refuse, घर का जो कचरा है everyday, into the streets to be trodden under feet. फिर उसके ऊपर लोग चलते होंगे और इस तरह से स्ट्रीट्स राइज कर जाती होंगी, एंड जो घर थे वो नीचे चले जाते होंगे, एंड फिर उन घर को ऑब्वियसली रेज करना पड़ता होगा. ओके, तो ये कंटिन्यूसली यहाँ पर होता था, जैसा हमें अभी भी देखने को मिलता है कई शहरों में. एंड यू फाइंड लोकली दैट कई बार स्ट्रीट की हाइट ऊंची हो जाती है, घर नीचे हो जाते हैं. तो यहाँ पर भी स्ट्रीट पर जब लोग अपने घर का जो वेस्ट मटीरियल है उसे अगर स्ट्रीट पर रेगुलरली डालते रहेंगे तो फिर स्ट्रीट्स की हाइट बढ़ती जाएगी, एंड फिर बाद में घरों को भी ऊंचा करना पड़ता होगा. ओके, सो पीपल सीम टू हैव स्वेप्ट ऑल देयर हाउसहोल्ड रिफ्यूज इनटू द स्ट्रीट्स टू बी ट्रॉडन अंडरफुट. दिस मेड स्ट्रीट लेवल्स राइज. इससे स्ट्रीट का जो लेवल है वो राइज हो जाता था. एंड ओवर टाइम द थ्रेशोल्ड्स ऑफ हाउसेस, जो घर है उनको भी रेज करना पड़ता था. ओके, वुड फ्लो inside, and water का बताया गया. Light, this is another thing which is important. In Mohenjo-daro also वहाँ पर भी प्राइवेसी का बहुत ध्यान दिया गया था. कोई भी विंडोज़ नहीं थी, स्ट्रीट्स की तरफ कोई विंडोज़ नहीं खुलती थी. यहाँ पर भी हम देखते हैं कि विंडोज़ से लाइट नहीं आती है तो रूम्स में. लाइट केम इनटू द रूम्स नॉट फ्रॉम विंडोज़ बट फ्रॉम द डोर्स ओपनिंग इनटू द कोर्टयार्ड. तो कोर्टयार्ड में लाइट आती थी, एंड कोर्टयार्ड से डोर्स के थ्रू ये लाइट एंटर होती थी रूम्स में. ओके, सो वी आर सीइंग दैट देयर वर नो विंडोज, व्हिच मींस प्राइवेसी रूम्स में काफ़ी थी. एंड दिस वुड हैव आल्सो हैव गिवन फैमिलीज देयर प्राइवेसी. देयर वर सुपरस्टिशंस अबाउट हाउसेस. हाउस कंस्ट्रक्शन में सुपरस्टिशंस भी होते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में फेस होना चाहिए, एंड डायरेक्शंस का सुपरस्टिशंस होता है, प्लॉट्स का क्या शेप होना चाहिए, साइज होना चाहिए. यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कई सारे सुपरस्टिशंस थे हाउसेस को लेकर, एंड
क्या चीज़ अच्छी मानी जाती थी, क्या चीज़ बुरी मानी जाती थी, उसको हम देखते हैं. There were superstitions about houses recorded in Oman tablets in Ur. तो वो टैबलेट्स पाई गई हैं उर में, और जिससे हमें पता चलता है कि लोग घरों को बनाते समय सुपरस्टिशियस थे. ये किस तरह की सुपरस्टिशंस थी? इसमें मानना था कि अ रेज्ड थ्रेशोल्ड ब्रॉट वेल्थ. वो घर जो ऊंचाई पे बना है वहाँ पर वेल्थ आएगी. ओके. एंड अ फ्रंट डोर that did not open towards another house was lucky. अगर सामने का दरवाजा किसी दूसरे घर के दरवाजे के सामने नहीं खुल रहा है, दूसरे घर के सामने नहीं खुल रहा है, तो ऐसा घर लकी माना जाता था. And if the main wooden door of a house opened outward, अगर किसी भी घर का जो दरवाजा है वो अगर बाहर की तरफ खुल रहा है, then the wife would be a torment to her husband. ऐसे घर में जो वाइफ जो लेडी है वो अपने हस्बैंड को काफ़ी परेशान कर सकती है. तो ये सुपरस्टिशंस भी हुआ करती थी. ये उर सिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि घरों के कंस्ट्रक्शन कैसे थे. वाइंडिंग स्ट्रीट्स थी, स्ट्रीट में कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था. घर का जो पानी है वो घर के अंदर ही उसको सम्प में डाला जाता था. एंड वी आर सीइंग दैट लाइट यूज्ड टू कम फ्रॉम द कोर्टयार्ड से एंटर होता था रूम में, एंड नॉट फ्रॉम द विंडोज. बट पीपल यूज्ड टू थ्रो देयर जो भी एवरीडे वेस्ट मटेरियल जो घर में जनरेट होता है उसे वो स्ट्रीट्स पे फेंक दिया करते थे. लोग उन पर चलते थे, एंड इस तरह से स्ट्रीट्स की हाइट जो है वो बढ़ जाती थी, एंड फिर घरों को भी ऊपर करना पड़ता था. कुछ ऐसी मान्यताएं भी थी घरों को लेकर कि जो घर हाइट पर बने हुए हैं, ओके, जिनका थ्रेशोल्ड ऊंचा है, रेज थ्रेशोल्ड है, विच मीन्स कि जो रेज प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं, ऐसे घर अच्छे माने जाते थे कि ऐसे घरों में वेल्थ आएगी. एंड जिस घर का डोर किसी दूसरे घर के सामने न खुलता हो, दोज हाउसेज वर कंसिडर्ड लकी. बट अ हाउस जिसके दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता हो, ऐसे इसको अच्छा नहीं माना जाता था. एंड इट वॉज बिलीव कि वहाँ पर फिर वो घर की जो लेडी है वो शायद अपने हस्बैंड को परेशान करे, ऐसा मानना था. ओके. देयर वाज अ टाउन सेमेट्री, तो जहाँ लोगों को दफनाया जाता था, सेमेट्री भी थी एक टाउन की पूर्व में, और इन विच ग्रेव्स ऑफ रॉयल्टी, ये हम डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ पे ग्रेव्स जो रॉयल लोगों के जो ग्रेव्स हैं, एंड कॉमनर्स हैव बीन फाउंड. तो अलग है, सोसाइटी में डिवीजन था. दे वर रिच पीपल एंड दे वर अदर ऑर्डिनरी पीपल. ऐसा ग्रेवयार्ड से अक्सर पता चलता है. एंड सिमेट्री में वी सी दैट दे वर ग्रेव्स मेंट फॉर द रिच, एंड जिसमें पीपल वर बuried along with lot of precious things, lot of jewelry and all, and they were graves for commoners also, common people. But a few individuals were found buried under the floors of the ordinary houses. तो एक टाउन सिमेट्री थी जहाँ पे नॉर्मली लोगों को बरी किया जाता था, बट कुछ हम देखते हैं कि कुछ लोग they've been found buried inside the house also. Okay, so this is obviously what we learned about the city of Ur, an important city. इसका excavation बहुत हुआ है ever since 1930s के बाद इसको properly excavate किया गया है, and that is why we know these details. Okay, so in this class I'll leave it here, and in the next class we'll be moving to a trading town के बारे में पढ़ेंगे, and this trading town is Murree. Okay, this Steppies पे जो town है. Okay, so we have learned about Ur, we have learned about Ur, and in the next class we'll be covering Murree. What kind of a city it was? It is in the northern. ये यहाँ पे pastoralism होता होगा, herders यहाँ पर थे, तो इसके details हम देखेंगे. Okay, and also a few other sections and the cities in Mesopotamian culture, legacy of writing, a few other topics also there. So probably I think there will be 2 more classes before I finish this chapter. Okay, and it's a very important chapter. Both chapters, they are lengthy, they got a lot of details, but this is an interesting chapter. Next year when you will be reading in detail about Indus Valley civilization, then this chapter will be helpful, because you can then relate many things with Indus Valley civilization. Okay, so that's all in this class. Next topic I'll be covering in the next class. Thank you.